Let them join. सारे लोग ज्वाइन कर लिए. Yes. So DBMS, it stands for Database Management System, an application software which facilitates us to create, modify, delete, etc. These are the some examples of DBMS: MySQL, Access, SQL Server, Oracle, FoxPro, etc. Next term is RDBMS. What is RDBMS? It stands for Relational Database Management System. It is also an application software which has all the features of DBMS. Please mute yourself. जिनको बोलना हो वही unmute रखें, please. Yes. So actually RDBMS is the advanced or next version of DBMS. So it has all the features of DBMS, as well as it allows us to create relationship between tables. In DBMS, it was not possible to work on relationships. So it is possible in RDBMS. Next, it is the difference between DBMS and RDBMS. DBMS store data as file, but RDBMS store data in tabular form. This is the first difference. DBMS में सारा फाइल में स्टोर होता है डाटा, और RDBMS में tabular form में डाटा स्टोर होता है. Second difference is that DBMS does not apply any security regarding manipulation of data, but RDBMS defines the integrity constraint. Next difference is that DBMS uses file system to store data, so there we cannot create relationship, but in RDBMS it is possible. DBMS does not support distributed database. It was disadvantage of DBMS. So in RDBMS we can work on distributed database. This is the major advantage. Now we are going to discuss MS Access. I will talk about MS Access during this session. So what is it? What is MS Access? Actually, it is an application software which allows us to create databases. MS Access में हम लोग database create कर सकते हैं, database को modify कर सकते हैं. It is just one part of Microsoft Office. It is an application of Microsoft Office. It stores data in its own format. Microsoft Access allows us to link related information easily. It can also import or link directly to data stored in other applications. ये कुछ फीचर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कामों को हम लोग कर सकते हैं MS Access के अंदर. एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. So it is a part of DBMS and it provides large of number of commands for working in database.
it is a look of MS Access. How can you start MS Access? MS Access हम लोग कई एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है, डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन है, just double click the icon and your screen will appear. If you don't have shortcut icon on desktop, then go to program menu and you can start MS Access from there. As well as we can start it by writing its executable name. Its executable name is MS Access. Just we have to type the executable name in run dialog box and press enter key. रन डायलॉग बॉक्स में इसके एक्सिक्यूटेबल फाइल को हम लोग टाइप करेंगे, विच इज MS Access. आई हैव टू राइट MS Access विदाउट स्पेस. MS Access टाइप करने के बाद इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, ये स्क्रीन खुल करके कुछ इस तरीके का हमारे सामने आएगा. यहाँ से हम MS Access में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट database in this application, and after that we create table, query, form, report, etc. सबसे पहले जो हम लोग इसमें काम करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को डाटाबेस ही क्रिएट करना पड़ेगा. If we are creating a database, then it will be saved with extension .accdb. अगर हम लोग 2007 या इसके बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हम लोग डाटाबेस क्रिएट करेंगे उसका एक्सटेंशन .accdb होगा, जिसका मतलब एक्सेस डेटाबेस होता है. इसके वर्जन में ये एक्सटेंशन .mdb हुआ करता था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2007 और later. So extension of database will be .accdb. Now, if we are talking about DBMS, then we must know what is database or what is table. So it is just introduction of that. Actually, table is an essential object in a database because it holds all the information or data. डाटाबेस में आप कुछ भी स्टोर करना चाहते हो, डाटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो, that will be stored in table. स्टोर करेंगे वो टेबल में स्टोर होगा. Tables are made up of rows and columns. It allows us for direct data entry in database. डाटाबेस में जब भी एंट्री का काम करना है, तो हम लोग सबसे पहले टेबल को ही यूज करेंगे. और ये रो और कॉलम से बना होता है. The row is the record that contains the individual data pieces making up an individual record. A particular row of a table which has information about a particular things or objects or persons, that is known as record. The columns are referred as field names. कॉलम को ही यहाँ पे हम लोग field name कहते हैं या कॉलम नेम कहते हैं. इन RDBMS, अगर हम लोग RDBMS के रेस्पेक्ट में बात करें, तो वहां पे टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं, रो को टपल कहते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं. सो दीज आर द की टर्म्स. नेक्स्ट इज क्वेरी. 082241. काइंडली म्यूट कर लीजिए. सेव द रिकॉर्डिंग. Now we are talking about query. टेबल में सारा एंट्री का काम हम लोगों ने कर लिया. All data are stored in table. But suppose there is a requirement to display records from the table. You want to filter the data. Then DBMS provides the concept of query. Using query, we can show the results according to given conditions. We can filter the results. A query is a request for data results and for action on data. With a query, we can apply a filter to the table's data. It is used to retrieve data from a table or to make calculations, right? Next one is form.
Using form, actually using form, we can create an interface through which we can enter records in a table. A form in Access is a database object that we can use to create a user interface for a database application. A form is one that is directly connected to a data source such as table or query and can be used to enter, edit or display data from data source. Next one is report. Actually, it helps us in printing of sponsor, please mute yourself. हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं कंप्यूटर ऐसा नहीं है. Yes. So report, actually using report, we can print the data of database or table or query, whatever. So report helps us in printing the data. It offers a way to view, format and summarize the information in the Microsoft Access database. It allows us to print data of database according to requirement. Now, the next point is relationship. आप लोगों में से कोई बता सकते हैं what is relationship? Relationship क्या होता है? Anyone? Any idea about it? What is the role of relationship in table or in database? Anyone? Primary key and foreign key introduce relationship. Right. Sir, relationship is responsible for reducing the data redundancy and data inconsistency Very good. in a table, and it makes the database relational database. It converts DBMS into RDBMS, and the relationship is established with the help of foreign key. Right. और कोई कुछ बोल सकते हैं? Connection between two tables. Yes. Very nice. When two tables are joined together with common primary key, then we form a relation. यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन चाहेंगे. और कोई कुछ बोल सकते हैं? When two or more fields are joined together with a common primary key, a common fields, then we form a relation. Yes. जो एक टर्म यहाँ पे बार बार आ रहा है, प्राइमरी की और फॉरेन की. प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है? प्राइमरी की हम लोग एक टेबल में कितना रख सकते हैं, कितने फील्ड पे रख सकते हैं? In a table we can have only one primary key. एक टेबल के अंदर केवल एक ही प्राइमरी की रख सकते हैं, और प्राइमरी की इसलिए रखते हैं हम लोग ताकि डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जा सके. To identify data uniquely. Yes, yes, yes. Right. So relationship in AMS Access helps us to combine data from two different tables. ठीक है? Each relationship consists of fields in two tables with corresponding data. In Access, we create a table relationship using two methods. दो मेथड से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. First method is relationship window and other is drag a field to datasheet view, जो कि field list pane से होता है. ये आपका जो सेकेंड वाला पॉइंट है, जो सेकेंड वे है, ये 2007 से ऊपर के वर्जन पे आप यूज करेंगे तो अच्छे से वर्क करेगा. 2007 या उसके पीछे वाले वर्जन पे यूज करेंगे
तो ये फील्ड लिस्ट पेन जो है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सारे वर्जन्स में ये काम करेगा। दो तरीके से आप यहाँ पर रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसको हम लोग सेशन में देखेंगे भी कि कैसे वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। स्लाइड के बाद हम लोग उसको देखेंगे। When we create a relationship between tables, the common fields are not required to have the same name. यहाँ पे अक्सर हम लोग के अंदर एक सोच बैठ गया है या सोच बैठा दिया जाता है कि दो टेबल के बीच में जब आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं तो टेबल का कॉलम का नाम सेम होना चाहिए। That is not required. कॉलम का नाम अलग अलग हो सकता है but data type of that field should be same. ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के लिए उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। नाम अगर फील्ड का अलग अलग है उससे कोई इशू नहीं है। सो व्हेन वी क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, द कॉमन फील्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द सेम नेम्स, ऑल्दो इट इज ऑफन द केस दैट वी डू। द कॉमन फील्ड्स मस्ट हैव द सेम डाटा टाइप। इफ द प्राइमरी की फील्ड, एक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर किसी फील्ड पे आपने एक टेबल में आपने प्राइमरी की लगा रखा है, दूसरे फील्ड में आप उसके फील्ड साइज प्रॉपर्टी से उसका सेम कर सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। Primary key is mainly used for records, sir. यस, फॉर यूनिक रिकॉर्ड। Yes, yes. यस, फर्स्ट मेथड है यूज करने का रिलेशनशिप विंडो को। कैसे रिलेशनशिप विंडो को यूज करके रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सकता है। तो ये करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दो या दो से ज्यादा टेबल बनाना पड़ेगा। इन अ डाटाबेस यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल टेबल्स बिफोर क्रिएटिंग रिलेशनशिप। अगर आपने एक सिंगल टेबल बना के रखा है तो फिर आप रिलेशनशिप का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम से कम दो टेबल बनाना होगा एक डेटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर जब आपने टेबल बना लिया उसके बाद आप इस स्टेप को करेंगे। डाटाबेस टूल्स पे जाएंगे जो कि एमएस एक्सेस के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ये एक टैब है, उस टैब पे रिलेशनशिप कमांड मिलेगा। जैसे ही रिलेशनशिप कमांड पे आप क्लिक करते हैं तो एक नया टैब आ जाता है जिसका नाम है डिजाइन टैब, और वहां पे शो टेबल्स का ऑप्शन होता है। यूजिंग दिस स्टेप you can display all the tables name. You can display the list of tables which you have created in database. जितने भी टेबल्स आपने बना के रखा सारे का नाम वहां पे लिस्ट में आएगा। एंड फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप यू हैव टू क्लिक ऐड। जो भी टेबल पे आपको रिलेशनशिप बनाना है उस टेबल को ऐड करना होगा और उसके बाद क्लोज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये काम करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ड्रैग अ फील्ड फ्रॉम वन टेबल टू द कॉमन फील्ड इन द अदर टेबल। जो दूसरा टेबल है आप उस पर ड्रैग करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे करना है, मल्टीपल फील्ड पे करना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल की। दिस इज द स्क्रीन ऑफ रिलेशनशिप विंडो। In next step, verify that the field names shown are the common fields for the relationship. If a field name is incorrect, click on the field name and select the appropriate field from the list. जैसा आप देख रहे हो दो टेबल यहाँ पे है, एक कस्टमर टेबल है एक ऑर्डर टेबल है। कस्टमर टेबल में फील्ड का नाम है आईडी और ऑर्डर टेबल में फील्ड का नाम है कस्टमर आईडी। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके टेबल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, किस किस टेबल के बीच में करना है। फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस फील्ड पे रिलेशनशिप करना है, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग करना है, तो वी कैन सेलेक्ट इट। नीचे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, इट इज ऑप्शनल। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। और नहीं चाहने पे इस टिक मार्क को हटाना होगा। व्हेन यू क्लिक वंस देन अ टिक मार्क विल अपीयर, व्हेन यू विल क्लिक ट्वाइस देन टिक मार्क विल डिसअपीयर। सो आफ्टर दिस स्टेप जस्ट
click on OK button. Then relationship between tables will be created. So these are the steps to create relationship between tables. आप रिलेशनशिप इसको यूज करके, इस स्टेप्स को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं. इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे भी. नेक्स्ट पॉइंट इज डाटाबेस डॉक्यूमेंटर. क्या आप लोगों में से किसी ने भी डाटाबेस डॉक्यूमेंटर का यूज किया है, विच इज अवेलेबल इन MS Access? एनीवन? हैव यू यूज्ड इट? It is also available on database tools tab in MS Access. Anyone? आप में से किसी ने इस कमांड को यूज किया है? Just say yes or no. That's why I am asking. और ये पता भी चलेगा पार्टिसिपेंट्स कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Just say yes or no. Database documenter. नो सर, मैं नहीं किया हूँ सर. Okay, thank you. So it is also a command in MS Access, database documenter. It is used to display and print all properties of an object or selected object. जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करके रखा है उसके सारे प्रॉपर्टीज को ये डिस्प्ले करता है. आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हो. It displays a report that contains detailed data for each selected object and then opens the report in print preview. ये डॉक्यूमेंटेशन को आसान कर देता है. आप डाटाबेस के अंदर जो भी आपने काम किया है, जिस टेबल का आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है या क्वेरी का डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इस काम को करता है. ठीक है. देयर इज नो नीड टू टाइप इट सेपरेटली. ये आपके काम को कर देगा. तो कहीं पे भी आप डाटाबेस मैनुअल किसी को अगर देते हैं तो वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करता है. ये आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देता है, सारा डिटेल्स उसमें होता है. आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो और PDF जनरेट करके किसी को मेल भी कर सकते हो. तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी कि ये कैसे करता है, कैसे ये काम करता है. ये कमांड कहाँ पे मिलेगा? ये सर्किल एरिया में दिख रहा है. जब आप डाटाबेस टूल पे जाएंगे तो ये डाटाबेस डॉक्यूमेंटर आपको यहाँ पे ये कमांड मिलेगा. आफ्टर क्लिकिंग दैट कमांड यू विल गेट दिस स्क्रीन. जैसे ही आप उस कमांड पे क्लिक करते हो आपको ये स्क्रीन मिलेगा. इस स्क्रीन पे जितना भी आपने काम किया है डाटाबेस के अंदर वो सारे को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं. जैसे ऊपर में है टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, मॉड्यूल है. जो भी आपने इस DBMS के अंदर बनाया है आप उस टैब पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने क्वेरी किया है, क्वेरी का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्वेरी को क्लिक करेंगे, क्वेरी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा. जिस क्वेरी का आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना है वो ओके क्लिक करने के बाद जनरेट कर देगा. टेबल का चाहिए, फॉर्म का चाहिए, रिपोर्ट का चाहिए, मैक्रो का चाहिए, जिसका भी चाहिए, जस्ट वी कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट आफ्टर क्लिकिंग दैट ऑब्जेक्ट और सेलेक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट. सो बहुत ही आसान स्टेप है इसका. इस स्टेप्स को यूज करके इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है और ये इस तरीके का उसका आउटपुट आएगा. ये जो स्क्रीन आएगा डॉक्यूमेंट जनरेट करने के बाद वो कुछ इस तरीके के का आएगा जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होगा, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. Next command is analyze performance. It is also a tool in MS Access. किसी ने इस कमांड को यूज किया है? Analyze performance. Anyone? नो सर. Okay. और किसी ने? Analyze performance is also a command in MS Access. We can use the performance analyzer to optimize the performance of a Microsoft Access desktop database.
The performance analyzer looks at the structure of the database as well as the data and makes recommendation to help us improve performance and prevent confusing data errors. ये हम लोग को हेल्प करता है आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराने में। ये कमांड कहाँ पे अवेलेबल होगा? तो ये भी डाटाबेस टूल्स पे जब आप जाएंगे एक्सेस को स्टार्ट करने के बाद, तो ये एनालाइज परफॉर्मेंस कमांड मिलेगा विच इज इन रेड सर्किल. You can click it. After clicking that command, this screen will appear and here you can select the object जिसको आपको एनालाइज करना है. आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे. इस तरीके का एक एनालाइजर जो है वो आपको एनालाइज करके रिपोर्ट देगा. जैसे इसमें दिख रहा है कि एक कस्टमर टेबल है. चेंज डाटा टाइप ऑफ फील्ड जिप पोस्टल कोड फ्रॉम शॉर्ट टेक्स्ट टू लॉन्ग टेक्स्ट, ये एक सजेशन प्रोवाइड कर रहा है. सेकंड है ऑर्डर टेबल के लिए चेंज डाटा टाइप ऑफ फील्ड शिप जिप पोस्टल कोड फ्रॉम शॉर्ट टेक्स्ट टू लॉन्ग टेक्स्ट. तो ये दोनों टेबल के लिए कुछ इस तरीके का सजेशन प्रोवाइड कर रहा है. ये सजेशन वैरी करेगा. जरूरी नहीं है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो यही मैसेज सारे के पास आएगा. ये डिपेंड करेगा आपने किस तरीके का टेबल बनाया है, उसमें कौन कौन सा फील्ड रखा है, उसका क्या डाटा टाइप है, whatever you have created. So this screen will vary system to system, right? Next command is switchboard manager. It is also a command in MS Access. ये भी एक MS Access का टूल है, पावरफुल टूल है. आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है या आपने किसी ने यूज किया है? स्विच बोर्ड मैनेजर स्टेप्स सारे जितने भी कमांड्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं, ये सारे स्टेप्स इसके आसान से हैं. आसानी से इसको किया जा सकता है. हो सकता है कि आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट नहीं आया हो इसलिए आपने यूज नहीं किया हो. क्या किसी ने यूज किया है इस कमांड को, स्विच बोर्ड मैनेजर? नो सर. ओके. सो स्विच बोर्ड मैनेजर ये कमांड क्या करता है? स्विच बोर्ड मैनेजर ये भी डाटाबेस टूल्स पे ही मिलेगा हम लोगों को. इट हेल्प्स यूजर्स. प्लीज म्यूट कर लीजिए सर. प्लीज माइक को म्यूट कर लें. ओके. So switchboard manager, it helps users to locate the necessary task. It is a customized MS Access form that works to simplify working style in Access. It is mainly used to tie the entire objects which we have designed or created in our database with a single form. Actually, switchboard manager का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं? आपने डाटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्वेरी हो, फॉर्म हो, रिपोर्ट हो, मॉड्यूल हो, तो सभी को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को अलग अलग प्लेसेस पे जाना पड़ता है. यू हैव टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस फॉर नेविगेटिंग दीज फीचर्स. सो स्विचबोर्ड मैनेजर प्रोवाइड्स फैसिलिटी to keep all these objects on a single platform. जैसे मेनू हम लोग क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन में, फाइल मेनू है तो फाइल से रिलेटेड सारा कमांड्स उस मेनू के अंदर है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है. प्रिंट करना है तो फाइल मेनू में चले गए, प्रिंट प्रीव्यू देखना है फाइल मेनू में चले गए, न्यू करना है ओपन करना है, यानी फाइल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करना है आप सीधे फाइल मेनू में जाते हो, वहां पे सारा कमांड आपको मिल जाता है. तो वैसे ही स्विच बोर्ड मैनेजर अलाउज अस टू प्लेस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म
आप एक ही जगह पे सारे को रख सकते हो, नेविगेशन के लिए अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से सारे ऑब्जेक्ट को आप नेविगेट कर सकते हो। ये मैसेज आ रहा है, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज रीज्वाइन। जब भी ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप रिज्वाइन कर लेंगे। ये स्विच बोर्ड मैनेजर कहाँ पे कमांड मिलेगा? जैसा हमने कहा, इट इज अवेलेबल ऑन डाटाबेस टूल्स टैब। ये डाटाबेस टूल्स टैब है, इस पे ये स्विच बोर्ड मैनेजर यहाँ पे ये कमांड मिलेगा। जैसे ही इस कमांड को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा। The switchboard manager was unable to find a valid switchboard in the database. Would you like to create one? ये मैसेज इसलिए आता है because we are going to create it first time. अगर आपने क्रिएट करके रखा है तब ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप स्विच बोर्ड मैनेजर क्रिएट करने जाते हैं तो ये जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा। तो ये मैसेज जब आपके स्क्रीन पे आता है, यू हैव टू प्रेस यस। आफ्टर क्लिकिंग यस, दिस स्क्रीन विल अपीयर। जैसे ही यस कमांड को हम लोग क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। अब इस स्क्रीन पे हम लोग क्या करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को नया बनाना है, या फिर अगर आपने बना करके रखा हुआ भी है आप एडिट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एडिंग बटन्स टू द स्विच बोर्ड, क्लिक ऑन द न्यू बटन। यहाँ पे सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये स्विच बोर्ड नेम है, यहाँ पे आप वो नाम दे सकते हैं जो एज ए हेडिंग आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। और नाम देने के बाद ये न्यू बटन है, इस न्यू बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आएगा। इस स्क्रीन में आप वो मैसेज फर्स्ट बॉक्स में रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि वहां पे बटन के साथ में डिस्प्ले हो। जो भी बटन के साथ आप मैसेज चाहते हैं, जो भी लिंक के साथ आप मैसेज चाहते हैं, उस मैसेज को we will type in first box. In the second box, we will select the command. सेकेंड बॉक्स में हम लोग उस कमांड को यूज करते हैं जो उस बटन पे अप्लाई करना है। और थर्ड ऑप्शन में है आप क्या करना चाहते हैं, किसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे सेकंड में हमने सेलेक्ट किया है ओपन फॉर्म इन एडिट मोड, और नीचे में हमने उस फॉर्म का नाम दिया। तो जैसे ही उस कमांड पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे जो अभी जनरेट हो रहा है, वो बटन जो स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा? एक्शन परफॉर्म होगा ओपन फॉर्म इन एडिट मोड, यानी जो भी फॉर्म आपने बनाया है वो एडिट फॉर्म में होगा। और कौन सा फॉर्म? उसका नाम थर्ड बॉक्स में है। सपोज यू हैव क्रिएटेड 4 फॉर्म्स, तो यहां से आप ड्रॉप डाउन से उस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हो, वो फॉर्म एडिट मोड में स्टार्ट हो जाएगा। जिस मोड में आप करना चाहो, ये कमांड वाले बॉक्स में जाकर के उस मोड को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके बटन। तो ये था स्विच बोर्ड मैनेजर क्रिएट करने का स्टेप। नाउ नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल कमांड। वी कैन वर्क इन MS Access by clicking the commands which is available on toolbars and in menu, as well as we can type the SQL commands also for creating table, query, etc. तो SQL कमांड को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। SQL कमांड का यूज करके हम लोग टेबल का भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ये सब काम जो भी SQL या MySQL या Oracle या SQL सर्वर में जो भी SQL स्टेटमेंट हम लोग वहां पे यूज करते हैं, तो SQL स्टेटमेंट हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। SQL स्टेटमेंट्स का, SQL कमांड्स का यूज करके अलग अलग काम कर सकते हैं। अब ये SQL कमांड यूज करने के लिए हमारे पास इंटरफेस कैसे आएगा? आप देखेंगे तो डिफॉल्ट से SQL का इंटरफेस नहीं आएगा, वो इंटरफेस नहीं आएगा जहां पे आप कमांड को टाइप कर सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट MS Access, and after starting MS Access, click on create database, and after creating database, click on query design. After clicking it, SQL view will appear. जैसे ही आप
क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करोगे तो एसक्यूएल व्यू जो है वो यहाँ पे व्यू जो ऑप्शन है इसके अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। जब तक आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक नहीं करोगे ये व्यू के अंदर एसक्यूएल व्यू नहीं आएगा। तो आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करने के बाद इस व्यू मेनू में जाएंगे, वहां पे आपको ये एसक्यूएल व्यू मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने वो इंटरफेस आ जाता है जहां पे आप एसक्यूएल कमांड को टाइप कर सकते हो। एसक्यूएल कमांड जो भी आपको रन कराना है वो एसक्यूएल कमांड टाइप करने के बाद आप उसको रन कैसे कराएंगे, तो रन कराने के लिए आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये रन कमांड दिख रहा है व्यू के जस्ट बगल में। आपको जो भी कमांड टाइप करना है आप यहाँ पे वो कमांड टाइप कर देंगे। टाइप कमांड करने के बाद इस रन कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट रन करेगा। अब उन सारे कमांड्स को वन बाय वन हम लोग एक्सेस में करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। I'm going to start MS Access. I think screen is visible to all of you. Yes. Okay. Thank you. So for starting MS Access, For the plant kingdom and the Virender sir, please mute कर लीजिए. on the basis of their study, they will be Virender sir, please mute yourself. Yes, thank you. So for starting MS Access, using run dialog box, we have to type MS Access in run dialog box and press OK button. After pressing OK button, this screen will appear. Choose blank database. Choose the location where you want to create it. I have selected desktop. Now see the extension. Here extension is .accdb. यहाँ पे जो भी हम लोग डाटाबेस क्रिएट करेंगे उसका एक्सटेंशन accdb है। एक्सेस डाटाबेस इसका मतलब है। So we are going to create a database. Click on create button. तो सबसे पहले दो टेबल हम लोग बनाते हैं। चूंकि रिलेशनशिप कमांड्स को देखना है, छोटा छोटा टेबल बनाएंगे, बड़ा नहीं। फील्ड टेक्स्ट ही रखते हैं और एक और ले लेते हैं रोल नंबर। I have created a table. Create another table. कुछ हमने फील्ड रख लिया। Now you can see that in design view there is an icon. ये आइकॉन इंडिकेट कर रहा है कि प्राइमरी कीज एप्लीकेबल ऑन आईडी फील्ड। ये हमने प्राइमरी कीज पे लगा रखा है। यू कैन चेंज द प्राइमरी की फील्ड बाय राइट क्लिकिंग इट। आप राइट क्लिक करोगे जिस पे भी आप प्राइमरी की लगाओगे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्राइमरी की फिलहाल इस फील्ड पे हमने लगाया है। नाम इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है, SID हमने कर दिया और यहाँ पे जो टेबल है इसमें ये है। अब एक एक दो दो रिकॉर्ड सिर्फ रख लेते हैं कुछ भी।
इसको टोटल कैसे करते हैं ये हमने